ठीक है सर। ओके एनीवे 7 मिनट ऐसे ही होता ना सर क्लास शुरू करके? क्या बोले? 5 मिनट ही होता ना सर क्लास शुरू करके? नहीं शुरू हुई अभी कर रहा हूँ। ओके ओके एनीवे लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास we saw what the energy of a particle in SHM is. So if something is in SHM, the energy of the system is either stored as kinetic energy or potential energy, and the potential energy max equal to kinetic energy max होता अपना. हाँ potential energy max equal to kinetic energy max होता anyway, because क्योंकि total energy is conserved, because this system is is not being under any force. Okay, there is no external force doing work on this system. Now spring and mass are part of the system, so say spring is applying force on the mass. So all these forces are internal forces. Because the forces are internal forces, we can say that net work done by an external agent on the system is zero. So if work done is zero, then there will be no change in net energy, right? yes Clear? sir Or there will be one more way of looking at it. When spring does work on mass, okay, it gains kinetic energy. When spring does work against mass, the mass loses kinetic energy, but that loss of kinetic energy will be stored as potential energy in the spring. Clear? yes sir clear So potential energy will be converted into kinetic energy will be converted into potential. Clear? So yes sir interconversion of kinetic and potential energy will be taking place, but net energy will be zero. Net energy will be zero. zero And we proved that. We wrote the equation for potential energy. We wrote the equation for kinetic energy. Okay. And we got that net energy to be independent of time. For example, सर here ये लास्ट वाले में आप ये कराए थे कि डेरिवेशन नीचे करें एक बार. ये वाला कराए थे कि आप आगे एक लास्ट वाला टी अपना पोटेंशियल एनर्जी मैक्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाला डेरिवेशन ये एक बार समझा सकते फिर से? हम देखे इस पे लेकिन समझ में नहीं आया हमारे को. So kinetic energy is half mv square. Clear? yes हाँ sir half m square. Yes. So half m is written as it is. V is what? A omega cos omega t. A omega. Because x is Yes sir. a sin omega t. If you Yes, take the डेरिवेट कर लिया derivative, तो अपने को will कर. a omega cos omega t. So basically Yes. V gets substituted here. That's all. Okay. So Yes, we sir. get half Okay. m a square omega square cos square omega t. Clear? That is kinetic energy. Okay. Potential energy stored in the spring is half kx square. This we derived in work power energy, right? Yes, Okay. sir. yes We, sir we integrated f dx. Okay, f was kx. Kx dx, integral of kx dx is kx square by 2. Remember? Yes, Yes, kx sir. square by 2. Yes. Okay, so here what is x? X is a sin omega t. Yes, a sin omega. yes sir X is substituted here. We get half k a square sin square omega t. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Kinetic energy, expression for kinetic energy. This is expression for potential energy. Note that kinetic energy will change with time and potential energy will change with time. Okay, because it depends on Okay. t according to the equation. Total energy is potential energy plus kinetic energy. Clear? Yes. Total energy is potential energy plus kinetic energy. Okay. Yes, sir. Yes, yes sir. sir So just write these expressions in place of potential energy and kinetic energy. Okay. So we get half k a square sin square omega t plus half m a square omega square cos square omega t. Clear? Yes, sir. Now Yes, sir. we know for any SHM omega is for not any Root k by SHM, m. हाँ. for this SHM. Spring For का है this ना इसलिए. SHM, omega is equal to root k by m. Okay? yes sir Yes, sir. Because the time period is 2 pi under root m by k. Okay? M by k. हाँ. So k equals to omega square M. Right. m, squaring on both sides and taking m to this side. Clear? Yes, Now sir. yes sir can I substitute k as Yes, you can. m omega square? Yes, sir. yes sir. sir we can So first term will become m omega square a square sin square omega t.
second is as it is. Okay. Yes, sir. So you can take all the common terms outside here. Okay. Yes, sir. So if you see, except sine and cos, everything is common. Yes, sir. And that So, identity will be equal to 1. okay. And sine square theta plus cos square theta is 1. So it turns out to be half m omega square a square. Clear? Yes, sir. Okay, sir. Now Okay. this and omega square can be substituted as k by m also. Omega square is k Yes, by m. sir. Yes. So this will be equal to will cancel and it will be also equal to half k a square. Okay. Yes, sir. Clear? Omega square is equal to K. Clear? Yes, sir. Got it. Sir, clear. Clear, sir. Now note that this total energy is independent of time. There is no time here because it got eliminated from the identity, trigonometric identity. Sine square Yeah. omega t plus cos square omega t is 1. So that means total energy is independent of time and is a constant, and its value is this. Clear? Yes, sir. Now total energy is potential energy max and kinetic energy max. You know why? Because I'll write one more page here just Both for of those understanding. equation we got half K square, that is why. No. First tell me what is kinetic energy. Half m V square. v square, correct? So what is Yes, sir. kinetic energy max? Half Half mv max whole square. I think we did that, right? Yeah. Yes, Yes, sir. sir. Only Above. we One did second. above. One second. I think in the next page we have that. Okay. Anyway, so yes, total energy is no. T Total equal energy to is Pe P plus max K. plus K max. Total energy is equal to Pe max equals to Ke max. Okay. Okay. Yes, sir. Pe max is half Ka square because you know A is the maximum position or the maximum Yes, X is equal to elongation A the square. spring and Ke max is half m V max square, but V max is A omega, right? Because Yes, it is sir. A omega cos omega t. So maximum value of cos is 1. So that's why Ke max is Oh. this. Clear? Yes, sir. When So potential energy is 0, kinetic energy is maximum. When kinetic energy is 0, potential energy is maximum. potential energy is maximum. Correct. Okay. Anyway, potential energy is equal to, I can rewrite this cos square omega t as 1 minus cos 2 omega t, right? Yes, sir. Yes, sir. Because cos 2 theta 1 minus cos 2 theta by 2 under root is equal to sin theta, right? Yes, sir. Repeat this one, So- sir. Can you repeat this one last? 1 minus cos 2 theta by 2 equals to sin square theta. Yes. So sin square theta can be written as 1 minus cos 2 omega t by 2. Clear? Yes, sir. Yes. So basically, this will be a constant minus something into cos 2 omega t. Clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So this is one constant minus this. Clear? Yeah. Sir, one doubt, sir. It should be equal to 1 by 4 ma square, no, sir? Yes, 1 by 4. Ah. 1 by 4. Clear? 1 by 4. Yes, sir. Yes, sir. Now this graph will be a periodic function only, but shifted up by this amount because you are adding a constant to this. Yes, sir. And the graph will be like graph of minus cos, but with period 2 omega. Angular frequency 2 Sorry, omega, angular right? frequency 2 Got omega. it, sir. Instead of angular frequency omega. Clear? Yes, Yes, sir. sir. So I'll show you graph. How is the graph? Okay, anyway, I'll just show you. Suppose the graph of position, right? First. Yes, sir. Okay. 1, 2, 3.
Okay, I think this is something. Okay, Sir, its period will be pi by omega which period? He's asking about time period. Time period of what? of cos 2 omega t. See, time period of sin t will be 2 pi. Time period of Yes, sin cos. 2t will be 2 pi by 2. Time period Yeah. of sin 3t will be 2 pi by 3. Time period of sin omega t will be 2 pi by omega. So time period of Yeah. sin 2 omega t will be 2 pi by 2 omega. So it will Yeah. be Yes, 2 2 pi by by 2 omega. omega. 2 to Pi cancel, by pi by omega. omega. Clear? Yes sir, जो भी आता Yes, उसको sir, डिवाइड कर दो clear. बोले थे आप 2 pi. हाँ, वो वही पहले बोला करे था थे. ना। थोड़ी देर वेट करो, अज़ा होने दो, मैं कंटिन्यू करता हूँ जब तक ग्राफ्स उतार लूँ. Okay, how will be the graph of potential energy? बोलो. Graph of potential energy. Graph of potential energy यहाँ पे है It देखो. will go to its maximum, then comes to 0. It will Then never again be repeating negative. the same process. First thing, it will never be negative. Here you see Yes, sir. potential energy. It will never be negative. The reason it will never be negative is because it is, square of something. The value will never Yeah. become negative. Okay. And here you can see that its value is 1 by 4 ma square here. So, okay. So its maximum value will Yes, be sir. 1. When the value of cos will be 1, this value will go to 0. Okay. When Yes, sir. value of cos will be minus 1, this will become plus, minus into minus. So it will be half ma square. Okay. Clear? Yes, sir. Yes sir. Half ma square. Something missing here. सर ये No, ऊपर sir. वाला स्टेप एक बार फिर से बोल सकते हैं sin theta is equal to root वाला. 1 minute. Something is missing. Actually, not missing. Something here. Care है ना? Potential energy में क्या है? Yes, sir. यहाँ पे k है. हाफ k x square ना? Yes, sir. सर ये k है. x k. हाँ बोलो. ये sin theta का एक बार बोलते हैं नीचे 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 वाला नीचे लास्ट में sin theta Sin कर square की देखिए जगह आप. 1 minus cos 2 omega t हाँ. by 2 कैसा आया बल्कि? वो डाल दिए, वो समझ गया मैं. उसके नेक्स्ट स्टेप पे sin theta equal to करके लिखे ना, वो क्या है? Expand कर लिया रो just.
कौन सा? खाली बस x is equal to ये potential energy is equal to half k x square. ओके, हाफ के x square मतलब ये. ओके फाइन. क्यों, कौन सा डाउट है? नीचे ये वाला स्टेप है साइन थीटा, आप खाली साइन थीटा की वैल्यू लिखेगा नीचे, पूछ रहा हूं मैं. नहीं वो लिखा. फॉर्मूला है बोल के मेंशन करे. ओके समझ गया, मैं समझा वो अलग स्टेप था बोल के. नहीं कौन step नहीं सा है, फॉर्मूला कौन सा? मेंशन करे. sin थीटा ये इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos ये वाला थीटा बाय साइन 2 थीटा वाला. इक्वल टू रूट 1 माइनस cos नहीं थीटा नहीं, ये नेक्स्ट खाली स्टेप. फॉर्मूला रिमाइंड करने के लिए. ओके, यस ओके सर. सर. तो ये मतलब ये बीच में नहीं है स्टेप, ये जस्ट फॉर्मूला रिमाइंड करने के लिए. 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2. क्लियर? यस सर. ओके फाइन. अभी बोलो. पोटेंशियल एनर्जी हाफ Yes, sir, के समझ स्क्वायर आ गया. ओके एनीवे, यू कैन क्लियरली सी के मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती व्हेन cos 2, ये जो ना Yeah. cos जो है ना 1 होता, और मैक्सिमम हाफ के a स्क्वायर होती जब cos -1 होता. क्लियर? Yes. एंड यस सर. बिकॉज यहाँ पे 2 ओमेगा है ना, 2 ओमेगा रहने की वजह से आपका पीरियड जो है ना हाफ हो जाता कंपेयर टू द पीरियड ऑफ दिस. पीरियड ऑफ व्हाट? पीरियड ऑफ ओमेगा टी. पोजीशन. ओके. मतलब पोजीशन और वेलोसिटी का पीरियड क्या रहता? ओमेगा रहता. इसका पीरियड क्या है? ये क्या है? ओमेगा टी. पीरियड है. ओमेगा है पीरियड इसका. हाँ. इसका पीरियड है. ठीक है. सो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का पीरियड क्या है? 2 ओमेगा टी. 2 ओमेगा है सॉरी. ओके नहीं, इसका पीरियड है ना, इसका ए, पीरियड. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता तो 2 पाई बाय 2 ओमेगा रहता वो. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो, पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा. ओके, तो नीचे वाले का 2 पीरियड पाई 5 बाय 2 बाय ओमेगा ना ओमेगा सर. होता. 2 पाई बाय ओमेगा. क्या बोले? 2 पाई बाय 2 ओमेगा था नीचे वाले का पीरियड बोल रहा हूँ. हाँ हाँ 5 बाय ओमेगा समझ लो. ये है पीरियड इसका. ठीक है. नीचे वाले Yes, का sir. पीरियड Pi by omega. पाई बाय ओमेगा होता. क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो ये वाले का, इसका पीरियड पाई बाय ओमेगा. क्लियर? यस सर समझ गया. Why? Because वहां पे 2 ओमेगा आ रहा, and this is nothing. It will just lift the graph by this amount in the upward direction. Clear? तो ग्राफ अगर देखें समझ तो गया. ग्राफ कैसा आता बोलो? इसका जितना है ना उसका आधा आता. क्लियर? पीरियड क्या आता? आधा. ऐसा इसका फर्स्ट नो वो कर. समझ में आया? तो मैं चेंज Yes. कर दिया. और कॉस नेगेटिव है ना, इसलिए ऐसा आता. क्लियर? यस सर. तो ये कॉस का ग्राफ थोड़ा ऊपर उठ के है. ठीक है, बाय सम अमाउंट. यस सर. बात समझ में आई? तो इसकी मैक्सिमम वाली चेंज होती ना सर. हाँ, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? चेक करो. होता है अभी 2 सोचा. हाफ के बोलो, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? हाफ के एक्स ए स्क्वायर. हाफ के सर ए दिखाइए स्क्वायर. आप ऊपर का. एक हाफ मिनट. के स्क्वायर. हाफ के स्क्वायर. प्रॉब्लम हो रहा कुछ. ओके एनीवे, ऐसा आता ग्राफ. समझ गया ना? एक काम करता हूँ, यस सर. थोड़ा ये स्नैप हो रहा ग्रिड पे. ओके, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता आपको. क्लियर? सही है. सो ये कॉस का इन्वर्टेड ग्राफ है. इन्वर्टेड कॉस और माइनस कॉस का ग्राफ है, and it is lifted upward such that its minimum value is 0. Zero. समझ में आया? Yes, sir. Okay, something like this. Okay,
Okay. Now, how will be the graph of क्या है वो, काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा रहता है? ये पोटेंशियल एनर्जी का है. ओके, पोटेंशियल एनर्जी, ये वेलोसिटी का था, ये पोटेंशियल एनर्जी का है. पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये है. कॉपी. ओके, समझ गए Yes, सर। sir. तो बोलो के की इसका, दिखाइए पर देख के बोलिए कैसा आता के का। आप लोग बोलो, थोड़ा सोच के बोलो. क्या सर? पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, क्या है? हाफ Half mv half square. mv square. हाफ mv स्क्वायर. वी वी क्या की डालते जगह हो? पे ए स्क्वायर a square omega square ओमेगा sin स्क्वायर cos cos ओमेगा square टी omega t. स्क्वायर cos ओके, मैं एक काम करता हूँ, ये वेलोसिटी का कट करके इधर लिख देंगे नेक्स्ट पेज में, और ये पोटेंशियल एनर्जी को विल पुट विथ पोजीशन बिकॉज कंपेरेबल है ना इसका. हाँ। क्लियर? तो ये तो सर ऐसा है. इसका अपने को पीरियड फिर वो आता क्या के स्क्वायर? अब देखो, पीरियड ग्राफ में से पीरियड कैसा बोलते, ग्राफ में देख के पीरियड कैसा जज करते? जैसे एक साइकिल रिपीट होना स्टार्ट ए- होगा. एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद पीरियड खत्म होता ना, तो ये है पीरियड आपका. क्लियर? हाँ। ऊपर वाले का. नीचे वाले का पीरियड क्या है भी देखेंगे. ठीक है, तो ये इसका पीरियड है बिकॉज ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. कितना है वो, कितना है Yes, sir. ये इक्वेशन के अकॉर्डिंगली? 2 pi. 2 पाई बाई ओमेगा. हाँ 2 Yes, पाई बाय sir. ओमेगा राइट। सो दिस इज 2 पाई बाई ओमेगा. क्लियर? Yes. Yes, sir. ये येलो ग्राफ में, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में पीरियड क्या है, थोड़ा देखो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा साइकिल. देखो यहाँ पे देखो, साइकिल कंप्लीट, टू कंप्लीट अ साइकिल दो चीजें देखना पड़ता, एक वैल्यू, दूसरा सर पाई बाय ओमेगा पे होती क्या? दूसरा स्लोप. एक वैल्यू, दूसरा स्लोप. देखो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम है मगर स्लोप अलग है, इसीलिए पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ. ठीक है, यहाँ से Yes, sir. यहाँ पे आए तो वैल्यू भी सेम है, स्लोप भी सेम है. दैट मीन्स पीरियड हैज बीन कंप्लीटेड. क्लियर? Yes, sir. ओके. अब यहाँ से यहाँ पे जब आ गए आप, तो वैल्यू भी सेम है, स्लोप भी जीरो सेम है. राइट? दैट इज द पीरियड. ओके, सो फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, तो पीरियड इज इक्वल टू 0 बोलना पर अब। नहीं, जीरो कैसा? देखो, Pi by omega. हाँ वही पाई बाय ओमेगा। तो आई थिंक यहाँ तो यहाँ पे आ रहा पीरियड. राइट? क्लियर? समवेयर हियर. Yes, sir. ओके, तो दैट इज हाफ. देखो थोड़ा गौर करो, इट इज हाफ ना, इट इज पाई बाय ओमेगा. क्लियर? यस सर समझ गए। यस पाई बाय Yes, sir. पाई बाय ओमेगा, तो इसका पीरियड पाई बाय ओमेगा है. क्लियर? ओके, ठीक है ना? यस सर समझ गए। ओके, एनीवे नेक्स्ट हम लोग अभी काइनेटिक एनर्जी का पीरियड ट्राई करेंगे. कैसा आता बोलो? काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी का ये है. ठीक है, अभी हाफ एम वी स्क्वायर. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, पहले इक्वेशन लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी का. बोलो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv square. एम वी स्क्वायर, मगर वी क्या है बोलो? पी की जगह वो A वैल्यू square डालना। omega a स्क्वायर square. cos स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, काइनेटिक a एनर्जी स्क्वायर इज, ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। एम तो आता ही कैसा भी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ना, सॉरी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. राइट? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. क्लियर? Yes, sir. क्लियर। नाउ ये जो सर कॉस स्क्वायर cos की ओमेगा, वैल्यू लिखते हैं. कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो है उसको जो है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉस टू ओमेगा टी लिखो. √1 plus cos 2 omega t by हाँ, 2. 2. तो एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आता. अच्छा, वो फॉर्मूला एक बार लिख देंगे यहाँ पे, कुछ लोगों को याद नहीं Yes, रहता. sir. तो cos 3 is equal to
root of 1 plus Hmm. cos 2 omega by Okay, cos theta equals to 1 plus cos 2 theta by 2 by 2 under root, square root. right? So you are using this formula basically to convert trigonometric ratio of what? Trigonometric ratio of theta to 2 Cos सर theta. इसको एक बॉक्स बना Okay, देता है, ऐसा दिख रहा है yes, सेकंड sir. स्टेप है. तो बोलो क्या right, था, हाँ, मतलब स्क्वायर यहाँ पे आप कर दिया तो cos रूट और इतना स्क्वायर वाली कैंसिल डालिए। रूट चले आया था 1 plus हाँ. cos 2 theta by 2 आता. cos 2 omega t by 2. cos 2 omega t 1 by 2 plus right cos 2 theta. cos 2 omega t. Cos 2 omega t by 2. Oh sorry omega cos 2 omega t. Yes, sir. पीछे का पूरा अपन कांस्टेंट बोल देंगे, खाली इसको देख लेके अपन वो कर लेते, ग्राफ उतार लेते। नहीं अभी दो यहाँ टर्म्स पे कर दो पॉजिटिव अलग-अलग. आता। हाँ, दो अभी अलग-अलग टर्म्स terms. आते हैं. Kinetic energy equals to half 1 by 4 1 m by a 4. square सर omega पीछे वाले square. कांस्टेंट नहीं करने बोले अपन, क्या बोले? पीछे वाले कांस्टेंट नहीं करने बोले, एक को बोलते वहाँ पे ओमेगा है बोल के। कौन सा? फर्स्ट टर्म को बोल रहा हूँ, मतलब हाफ m a square omega square को नया सीन. हाँ, जैसे कि अपन ऊपर पे को ऊपर एक शुरू का कांस्टेंट बोल के हटा दिए थे, वैसा टोटल यहाँ एनर्जी. के को नहीं करे। टोटल एनर्जी. नहीं, पीई पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे अपन नीचे ग्राफ कैसे 1/4 के स्क्वायर को कोने में कर देते ना, हाँ यहाँ पे भी करना पड़ता. वही करते वही अपन। कर. ओके, हाँ तो क्या था बोलो, मतलब दो न्यूमरेटर्स अलग अलग करे तो क्या था? सर 1 by सर 4 1 by m 2 a 1 by square 4 omega m a square square t by omega 2 square plus प्लस plus आता है. 1 by 2 1 by plus 4 plus m a 1 square by omega 4 square cos m 2 a omega square t. omega square cos 2 omega t. Yes, sir. एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी के जैसी आया, बट बीच में जो है ना प्लस साइन आया इंस्टेड ऑफ माइनस साइन. समझ में आया? Sir अपने omega ग्राफ सीधा square आता अब ये टाइम, सीधा ग्राफ। सीधा ग्राफ आता. sir 1 In by fact- 4 हाँ बोलो. 1 by 4 m a square omega square नहीं लिखे आप, ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखे सेकंड वाले उसको. ओके ओके सॉरी. सो एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी आता, ठीक है? तो ये टर्म आ sir. गया. ये टर्म आने के बाद इसका ग्राफ जो है ना हम लोग ड्रॉ कर सकते. कैसा ड्रॉ कर Yes, सकते? sir. एक्चुअली जो इसको, अच्छा ठीक है, एक और तरीके से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. देखो, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू 1/4 हाफ 1/4 m v max स्क्वायर प्लस 1/4. ऐसा भी लिख सकते हैं ना? Yes, हाँ सर, sir. लिख सकते हैं. Yes तो sir. अब क्लियरली दिख रहा कि ये काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता. ओके, हाँ, क्लियरली दिख रहा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर है, ठीक है? 1 Yes, by sir. 4 mv square cos 2 omega t. cos 2 2 omega. ओमेगा. क्लियर? Yes Yes, sir. Yes sir, Yes, clear। sir. ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहती बोलो? इसकी वैल्यू मतलब y वैल्यू क्या रहती है इसकी? पाई बाय 2 ओमेगा, फिर इसके बाद ऐसा कर दो. नहीं, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है पोटेंशियल एनर्जी की? सर, मैक्सिमम 1 by वैल्यू 4 k square। 1/4 नहीं, 1/2 के स्क्वायर. समझ में 1 आया? by 2. Oh yes sir. मीन वैल्यू रहती 1/4 के स्क्वायर. समझ में आया? Yes, sir. समझ गया। और मिनिमम वैल्यू रहती 0. दैट्स व्हाई नेगेटिव नहीं होता कभी भी. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. और ये सबसे नीचे तो 0 रहती, लिखने की जरूरत नहीं है. बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. ओके, एनीवे, तो यही ग्राफ हम लोग कॉपी करके उसका काइनेटिक एनर्जी का लिखेंगे, ठीक है? Yes, sir. सो काइनेटिक एनर्जी ऐसी रहती है एग्जैक्टली ग्राफ, एक्सेप्ट वन डिफरेंस. क्या है वो? क्या रहता डिफरेंस बोलो? पर क्या बोले आप? कैन यू रिपीट क्वेश्चन? वो ग्राफ जो है ना, ये येलो कलर का ग्राफ दिख रहा, येलो कलर का, यस। वो मैं जो है ना पोटेंशियल एनर्जी का लिखा, मगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी होना है तो क्या करना है? ये ग्राफ सर उसको रिवर्स कर दीजिए, बस उसको Reverse एकदम हो पलटा जाता। दीजिए।
रिवर्स कर देना, बिकॉज हाँ। बीच में जो प्लस साइन था वो माइनस हो गया अपना। ऊपर, नहीं पहले जो माइनस था अब प्लस हो गया, हाँ सॉरी उल्टा। Yes, sir. ठीक है। तो सी लास्ट टाइम माइनस कॉस का ग्राफ डाले थे विच वाज शिफ्टेड अपवर्ड अब बाय प्लस सम कॉस का अमाउंट, अभी प्लस कॉस का डालते हैं विच इज शिफ्टेड अपवर्ड बाय सेम अमाउंट, तो बेसिकली ये ग्राफ उल्टा हो जाता ऐसा, Yes, sir. समझ गए? नहीं तो मैं साइड में भी हटा सकता हूँ ग्राफ को, साइड में हटाए तो भी हो जाता काम, प्लस कॉस आ जाता ऐसा, ठीक है। हाँ बराबर, यस यस Yes, यस। sir. अगर लॉजिकली बोले तो जब क्या काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स थी इस वास्ते। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स यूज करे तो भी यही आता, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एक्चुअली थोड़ा, अरे भाई ओके, एनीवे थोड़ा ऊपर नीचे होता है ग्राफ, बट समझ जाओ, ठीक है। ये स्नैप नहीं होता बराबर, तो ये ग्राफ आता आपको क्लियर। Yes, sir. Clear. तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है बोलो, हाफ के स्क्वायर भी होता, हाफ बट के स्क्वायर काइनेटिक ही है। एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे हाफ एम वी V मैक्स max स्क्वायर square. होता, V और max मीन whole वैल्यू square. इज हाफ 1/4 m। 1/4 square. m V max whole square. Okay, so this is a graph of what? Kinetic energy versus काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy. नहीं होता ग्राफ इधर, टाइम टाइम Okay. ऑलवेज, हाँ क्या टाइम है? yes, सॉरी sir. टाइम ये टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, समझ गए? हाँ Yes, ऊपर sir. वाला पोटेंशियल एनर्जी एक्स टाइम है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, ओके। एनीवे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, और ये वाला ग्राफ क्या था? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, और ये वाला क्या था? Position versus time. पोजीशन वर्सेस टाइम, तो एक्स वर्सेस टाइम लिख सकते हैं, करेक्ट? Yes, sir. Okay. Okay, fine. Now, this is one thing. There will be problems based on this itself also. But this fact can be used for calculating SHMs of calculated, complicated systems. बोला ना? Yes, sir. Yes, sir. तो उसके लिए स्टार्ट करे थे ये, बट ऑब्वियसली ये ग्राफ्स है, और ये जो वैल्यूज है इसके मीन वैल्यूज है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, हाउ द ग्राफ्स विल बी, that in itself is one theory, and based on that theory some numericals or theoretical questions can be asked. So this itself is important, but the big set of problems involves using the fact that total energy is conserved. बात समझ में आई? अच्छा, रिपीट सर। Yes, मैं एक बात बोलता हूँ, ये जो अभी जो सीखे हम लोग, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम है, ठीक है? क्लियर? तो ये येलो कलर की जो है ना काइनेटिक एनर्जी है। नाउ ये ग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, मतलब काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती, काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या रहती, काइनेटिक एनर्जी का पीरियड क्या रहता, काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या रहती, बात समझ में आई? yes, sir. और काइनेटिक एनर्जी का एम्पलीट्यूड क्या रहता, बोलो काइनेटिक एनर्जी का एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज 1/4 m v max स्क्वायर ना, क्योंकि मीन Yes, वैल्यू sir. से जितना ऊपर और नीचे जा रहा उसको जो है ना आप बोलते हैं Amplitude. एम्पलीट्यूड, तो इसका Amplitude, एम्पलीट्यूड इज yes. 1/2 minus 1/4, ठीक है? राइट। और Yes, sir. ये नीचे भी उतना ही जा रहा, ऊपर भी उतना ही जा रहा, तो 1/4 माइनस एम्पलीट्यूड, 0 होता है नीचे। ओके ओके, फाइन फाइन। काइनेटिक एनर्जी has amplitude of 1/4 m v max square, ठीक है? Yes, sir. और पीरियड ऑफ पाई बाय ओमेगा, Pi by omega. क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी भी सेम स्टोरी, कहाँ गई पोटेंशियल एनर्जी? ये बोलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी का बोलो। 1/4 पोटेंशियल एनर्जी K का भी वैसा square. था 1/4 माइनस 1/2। नहीं, एम्पलीट्यूड बोलो, हाफ और 1/4 1/4 K square. K square. के ए स्क्वायर, ठीक है?
Yes, sir. और टाइम पीरियड 2 pi by 2 pi by नहीं pi by omega. पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड इज पाई बाय ओमेगा, ठीक है। Yes, sir. ओके फाइन, ये चीज़ें तो याद रहना आपको। एक्चुअली 2 पाई बाय 2 ओमेगा जाके पाई बाय ओमेगा हो गया, ठीक है। Yes, Yes. sir. ओके फाइन, तो टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा बोल के बोल सकते। अच्छा एक और चीज बोलो, अभी व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी? सर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, फाइन। तो मैं यहाँ पे जो है ना टोटल एनर्जी का मैं ये लिखता हूँ, कहाँ गई काइनेटिक एनर्जी? हाँ यहाँ पे टोटल एनर्जी के बारे में मैं जो है ना ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये ग्राफ क्या रहता है बेसिकली टोटल एनर्जी का। सर दोनों कंबाइंड रहते शायद ना, मतलब ऐसा ऊपर भी आता फिर नीचे भी आता हूँ दोनों मैं पे। देखता हूँ मैं बोलता हूँ। देखो ये जो पिंक कलर है ना वो पोटेंशियल एनर्जी है। नो, ऐसा करना पड़ता Yes, sir. एक्चुअली, पूरा गोल फिरा तो नहीं आ रहा। ओके ये पोटेंशियल एनर्जी है, डू यू एग्री? Yes, sir. yes sir. नाउ व्हाट विल बी द सम ऑफ बोथ, कैन यू गेस? ये येलो एंड पिंक मिला के Sir, half mv max whole square आता कभी भी. नहीं ग्राफ कैसे आता? हाफ के स्क्वायर आता, के स्क्वायर। ग्राफ अच्छा सम का ग्राफ बोल रहे हो? ओके. स्ट्रेट लाइन आता सर. स्ट्रेट लाइन आता, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट क्या? लाइन आता, राइट? यस सर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. कैसा? के ई प्लस पी कभी भी मतलब सेम रहता वैल्यू हर एक जगह पे, देख लो. ओके वो हाफ के स्क्वायर बोल के जो अपन दिखे था तो वो है क्या ये? हाँ तो एक्चुअली इन दोनों का जो सम रहता ना उसका ग्राफ ऐसा आता, यस सर. ठीक है। तो थोड़ा मैं टचअप कर रहा हूँ ये ग्राफ को, ऐसा आता। बात समझ में आई? यस सर समझ में आ गया क्योंकि बात। दोनों जब ऐड होते ना ये आता। क्लियर? सो दिस इज ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी। ओके नाउ ये मेड दे रहा हूं मैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ये जो येलो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी का है, राइट? यस सर। ये जो पिंक ग्राफ है वो पोटेंशियल एनर्जी का है, राइट? करेक्ट? Yes, sir. Correct. यस और सर. दोनों के वैल्यूज जब ऐड करते हैं आप, आपको क्या आता? T का ग्राफ टोटल आता. एनर्जी आती, बराबर? टोटल एनर्जी का Yes, ग्राफ sir. आता. क्लियर? Yes. यस सर, मतलब टोटल Yes, sir, एनर्जी clear. रिमेन्स कांस्टेंट. ओके टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और इनफैक्ट गेस करके भी लिख सकते हैं आप ये ग्राफ, कॉमन सेंस है। और आप जो है ना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी हाफ इज के इंडिपेंडेंट ऑफ स्क्वायर. टाइम, टोटल एनर्जी इज यस सर. Independent of इंडिपेंडेंट time. ऑफ टाइम। और टोटल एनर्जी की वैल्यू आप दो तरीकों से लिख सकते हैं, हाफ m v max स्क्वायर और half इज k इक्वल टू half हाफ के एक्स स्क्वायर। Kx. a x max स्क्वायर, करेक्ट? यस Yes, एक्स sir. मैक्स। x max स्क्वायर, क्लियर? सर बीच में इक्वल टू डाले दोनों के। नहीं ओके ठीक है, इक्वल टू है बट ठीक है एनीवे। अब व्हाट विल बी हाफ m v max स्क्वायर बोलो? सर v की जगह पे अपन ए ओमेगा cos ओमेगा a टी डाल ओमेगा लिख सकते, a ओमेगा लिख सकते, राइट? हाँ वो 1 हो रहा था वो, हाँ मैक्सिमम। तो ये हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है। yes sir. ओके फाइन, ये एक चीज मालूम हो गई। यस सर. ये क्या होता? Half K A square. A square. हाफ के, अब यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर को अपन square. के बोलते हैं। यस सर, Okay, ये fine. स्क्वायर आता. हाफ ये के ए कैसा? स्क्वायर आता फिर। हाँ, we just substituted maximum values of those parameters, that's all. Clear? Yes. Yes sir. Now in fact if you see
k is equal to under root, sorry, omega equal to K is under equal root. to m omega square. सर ओमेगा ओम- स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम. ओके वैसा भी by m, लिख सकते right. हैं या नहीं तो Yes. ओमेगा याद रहता ना Root आपको K Omega by equal M. to under root k root by k m. by K m by m under root. implies k ओमेगा equals स्क्वायर to इक्वल K टू के बाय equal एम. to के omega इक्वल टू square m. Omega ओमेगा square स्क्वायर M. एम. omega square Omega m. square into m. Now k equal to omega square m, that's why these two are equal to each other, correct? Yes. ये Yes. ओमेगा स्क्वायर m अगर डाल दिए इधर तो ये दो इक्वल हो जाते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ दिस. ओके Yes. क्लियर? बात समझ में आ गई अभी? यस सर. Yes. Now, Yes, sir. using law of, so total energy is conserved. Total energy is Conserved. conserved. That is what? Total energy is conserved. That means what? Total energy before equal to Potential total energy energy is after. equals to kinetic नहीं नहीं energy. नहीं 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 वैसा मत बोलो. Total energy is conserved. Total energy is conserved means total energy is मतलब calculus में बोलो भाई. Sum of potential energy. No plus no 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 kinetic- no. No, its Calculus. differentiation will be 0. Yes yes exactly. But Yes, उससे sir. पहले एक और term. तो बोलो constant है. Yeah, constant. Total energy is constant. With respect to? Its derivative will be 0. With respect to? सिद्दीक म्यूट करो. भाई रिंगटोन्स क्या रख रहे हैं भाई? हाँ देखो क्या डेंजर इंटर. तो टोटल एनर्जी क्या होता है बोलो? इस सर kinetic कांस्टेंट energy plus potential energy. नहीं कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना. Back to time. Time. कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बात समझ में आई? Yes. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ टोटल एनर्जी जीरो आता, राइट? Yes. सो डेरिवेटिव, मेरा पेन खराब हो गया शायद. हाँ Of total energy will be 0. Okay, total okay, energy with वकाता respect to यो. time Yes, sir. is zero, करेक्ट? तो ये कौन सा भी एसएचएम ले लो, ऑलवेज ये ट्रू है. क्या ट्रू है? टोटल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव जीरो आता. क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन. अब स्प्रिंग मास सिस्टम का लिखेंगे हम लोग टोटल एनर्जी, ठीक है? Yes, sir. फॉर ए स्प्रिंग मास सिस्टम बोलो टोटल एनर्जी, बोलो जल्दी बोलो. टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस Potential. Potential energy. potential energy implies total energy equals to half Half k mv square. square. Okay, yes. half Half kx k square. is- Clear? K square, yes, sir. Now taking derivative on both sides, what will you get? 0 equal to So मैं लिख देता हूँ, देखो dy dt of अच्छा सर 0 equal to half mv square plus d by half dt k of t. square आता dy dt of mv square by 2. half भाई इंटीग्रेट नहीं करे ना अपन. mv square हाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं. okay Yes, sir. plus d by dt of half kx square, right? Half kx square, yes, sir. Okay, anyway देखो plus d by dt of half kx square. क्या आता है भाई? देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका तो बोल दिया हम लोग ऑलरेडी, हाँ yes sir 0 आ जाता. जीरो आ जाता. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आ गया. सर d by dt of t is equal to mv plus kx. हाफ एम नहीं हाफ एम कांस्टेंट है, बाहर आ गया. हाँ राइट बराबर. v फिर 2 स्क्वायर भी का आता 2 फिर. into Third. dv by dt हाँ Yes 2 भी sir. dv by dt. d yes. by dt a आ प्लस जाता हाफ अपने को. के हाफ के कांस्टेंट x बोलो 2x आता.
2x by dx dt. by Clear? dx. yes sir. We know one thing. Derivative of velocity is what? Acceleration. Yes. Okay, और 2 cancel. x का v आता है यहाँ पे. हाँ sir, Two 2 to cancel. So m MVA. A plus mva plus plus यहाँ पे ka आता है. kxv. kxv. Correct? Yes, Yes sir. sir. तो v V constant, common तो ma plus kx. v constant निकलता. राइट ma plus kx. अरे ma बोलते फोर्स आता फिर kx बोलते फोर्स ही आता. हाँ opposing forces है ये दोनों. MA equal to minus काइनेटिक KX. में आता है दूसरा वाला किस में? नहीं दोनों भी एक में चाहते, दोनों भी opposing है. ओह ma equal सॉरी to minus kx. हाँ सॉरी. MA equal to minus MA KX. equal to माइनस minus kx. kx खत्म. A equals to minus. Minus k by mx. Clear? Yes So, sir. We got the equation of SHM. ये है equation of SHM. A is equal Yes to sir. minus omega square x. समझ में यस आया? सर माइनस ओमेगा Yes स्क्वायर. sir. तो ये देखो एक्चुअली जो हमारा ओरिजिनल मेथड था वो इजी था क्योंकि एक स्टेप में आ जा रहा था, राइट? Yeah, yes हाउ sir. सर. This method is little bit long, but I will show you problems where only this method will work out. Our method will be very difficult to Okay. do. ठीक है? गौर से देखो, अभी बहुत गौर से देखो. एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ. ये सिर्फ फोर्स से करो बोले तो नहीं कर सकते. Now we have a spring here. Okay. Now spring is not attached to a block. It is attached to a wheel. It is attached to a wheel. Wheel मतलब क्या? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए. मैं बोलता हूँ, ठहरो. ये इससे पहले किस पे अटैच करे थे हम लोग? ब्लॉक से अटैच करे थे, ब्लॉक पे राइट? करे थे. हाँ अब ब्लॉक पे नहीं कर रहे, अब व्हील पे अटैच कर रहे. व्हील कैन रोल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Now this is okay. So this is in pure rolling. This is in pure rolling. Pure There is rolling. friction. Friction is enough for pure rolling. Okay. Yes sir. For pure rolling. इसका मतलब ये जो है ना आगे पीछे जब जाता, it will not slide, it will roll. Okay. Roll. तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और ये वाले व्हील का मास m है, रेडियस r है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है. Now I can be different, right? If it is a hollow cylinder, it will be mr square. Yeah, it will be If it different. is solid cylinder, it is half mr square. If it is a hollow sphere, it will be 2 by 3 2 mr by 3 square. If mr it is a square. solid sphere, sorry, if it 2 by is a 5 mr solid square. sphere, it will be 2 by 5 mr square. If it is a hollow sphere, it will be 2 by 3 mr 2 square. by 3. So I can be different, and axis of rotation will be this. Okay, हाँ like this. Yes ऐसा sir. ऐसा clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise फिरते रहता, आगे पीछे जा रहा. Clear? Yes sir. Now I need to find time period for this system. ठीक है. अभी अगर मैं फोर्स लिखने के लिए ट्राई करा, रोलिंग इन्वॉल्व है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. इट इज इम्पॉसिबल How? एक्चुअली Yes sir. इन गेटिंग आंसर इन वन पेज. बट अगर मैं इसका एनर्जी लिखा, टोटल एनर्जी, बोलो टोटल एनर्जी क्या होता? Kinetic energy plus potential energy. ओके फाइन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल Plus एनर्जी. potential energy. बट दिस अब टाइम काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम no, this time kinetic energy has two parts. Kinetic Rotational और energy एक translational translational. plus हाँ kinetic energy rotational Translational. Yes sir. Plus potential energy. potential. P. Clear? Now it is easy. देखो कुछ नहीं, लिख देना इक्वेशन. इक्वेशन में क्या आता? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी Half mv ट्रांसलेशन इज square हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ plus रोटेशनल I में. omega square. F हाँ आई I ओमेगा. omega. Half I omega square. i ओमेगा स्क्वायर प्लस स्प्रिंग का क्या है? Half k square. Kx Half square. k हाफ के एक्स square. स्क्वायर. यस k स्क्वायर. क्लियर? यस Now सर. Yes sir. since it is in pure rolling, V equal to R omega. very good, excellent. Pure rolling, v equals r ओमेगा. R omega. तो हम लोग क्या करते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू आर बाई वी. ओमेगा इक्वल्स टू आर R बाई by वी V. सब्स्टिट्यूट करते.
समझ गए? Because I don't want omega, Okay. I want to do in V and A. Okay, Omega समझ equal गए। to V by R. so omega equals to V by R. R. So I'll use this and eliminate omega from the equation. ठीक है? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. Got it. तो V square by R square आता है। तो टोटल एनर्जी हो जाती, बोलो, हाफ half mv Half square mv square plus half plus half I v square by r v square. square r square. सर फिर K की जगह M ओमेगा स्क्वायर करके ओमेगा दोनों का रूट कर लेंगे, वो कर लेते ना, और एक बार भी Plus ओमेगा half एलिमिनेट। kx square. अभी एक्चुअली तो एक kx शॉर्ट square ही लिख रहे हैं। एक्चुअली एक शॉर्टकट बोल देता हूँ मैं, देखो बात, खैर ये बार करेंगे। तो K की सारी बात जगह बताइए M सर। ओमेगा स्क्वायर डाल के ओमेगा को एलिमिनेट करते ना वहाँ पे भी। ओके, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ठीक है? Yes, sir. m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, दिस टर्म इज वेरी फ्रीक्वेंटली occurring, right? m प्लस आई बाई आर हाँ स्क्वायर सर। Into V इंक्लाइन square. प्लेन्स में भी आया था, राइट? कई को तो रेडियस कैंसिल हो जाता है इधर, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता बल्कि। एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ से Yes, आंसर sir. लिख दे सकते हैं आप एक्चुअली, क्योंकि m के बदले m प्लस आई बाई आर स्क्वायर आया, k के बदले k ही है, तो ओमेगा इज अंडर रूट k बाई m के बदले ओमेगा इज अंडर रूट k बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर आ जाता, राइट? Yes, sir. यस सर। क्योंकि देखो भाई कॉन्स्टेंट्स बदल रहे बस, और कुछ नहीं बदल। हाँ। बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो बोलो क्या आता? ठीक है, डेरिवेटिव निकालेंगे, चलो अभी एक ही बार करें ना, सेकंड टाइम भी करेंगे। Okay. टेकिंग डेरिवेटिव with respect to t on both sides. Yes, sir. तो आई थिंक ये तो जीरो हो गया, हाफ m प्लस आई बाई, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाता, Yes, sir. इनटू 2v d Into into 2v. Yes, 2v sir. dv by dt। 2v dv into by dv by dt dt plus plus half 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 k k into 2x into dx by d dt. by d. Yeah, dx by dt. chain rule ना, because we are taking Yes, derivative sir. with respect to Yes, t, sir. chain rule लगाना। now dx by dt is v, dv by Yes, dt sir. is And a, dv by dt is a. तो ये इक्वेशन आपको क्या आता बोलो? 2 cancel. 2 कैंसिल, तो m m plus I प्लस by r square into a. Sir, whole square was also there, I guess. कहाँ पे? एक मिनट ऊपर का बताइए, मैं देख लेता हूँ। नहीं वो तो डेरिवेटिव निकाले ना, ओके ओके, समझ गया। मैं उसका था समझा वो। m plus I by r square का नहीं है उसमें। तो ये v इंटू a, ठीक है, Yes, sir. प्लस हाफ तो चलेगा, कैंसिल हाफ चलेगा। Yes, sir. k into v K into x a. आता है। Into v. k हाँ, x a. V, x v, yeah. ये v कॉमन होके कैंसिल हो जाता, हाँ सर। Yes. तो either v equal to 0 और a equal to ये आता, समझ गए? v equal to 0 मतलब क्या? if it is at rest it will remain at rest, that is the Yes, meaning of sir. that. एक्चुअली कैंसिल नहीं करना हम लोग, उसका भी मतलब वो भी एक सॉल्यूशन है। क्या है एक सॉल्यूशन? Got it, sir. Velocity equal to 0 zero. आती है बल्कि। ओके, सो a is equal to minus k by m plus M plus I by I by r square. r square into x. into x. So comparing this with our standard equation, standard equation A is is what? equal to A equal to minus omega square square. x, so omega is equal to root Omega of k equal by to m under plus I root by r k square। by m Okay. plus I by r square. तो ये है ओमेगा, क्लियर? Yes, sir. ये ओमेगा है, ठीक है? Yes, Clear? sir. लिखे तो कंफ्यूज होता, तो ये है ओमेगा, ठीक है? Yes, sir. Got it. तो आप लिख दे सकते, ठीक है? ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स आते, ये तो सिंपल है बहुत, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड Yes, sir. सिस्टम्स आते, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, यू विल गेट सम आइडिया हाउ कॉम्प्लिकेटेड ए क्वेश्चन कैन कम, ओके, इन एग्जाम। Okay, sir. ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? तो दिस विल टेस्ट योर नॉलेज इन न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन आल्सो, ठीक है? तो थोड़ा Okay, sir. गौर से देखो।
तो एक बेसिकली यहाँ पे कितने पुलिस लेंगे? 2 पुलिस लेंगे। ओके, मैं 2 पुलिस लेता हूँ। सो 2 पुलिस का एक सिस्टम ले रहा हूँ, ठीक है। एक फिक्स्ड पुली है, Yes, sir. ये फिक्स्ड पुली है, दिस इज अ फिक्स्ड पुली एंड दिस इज अ मूविंग पुली। ओके, सो ये मूविंग पुली है एंड दोनों जो है ना एक रिजिड सपोर्ट से हैंग कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक मास है, Yes, sir. इधर एक मास हैंग हो रहा, ठीक है। और मैं स्प्रिंग्स लगाता हूँ इसमें, ठीक है। Yes, sir. एक्चुअली 2 स्प्रिंग्स लगाना, तो व्हाट आई विल डू इज इसको छोटा कर देंगे। तो व्हाट आई विल डू इज बीच में स्प्रिंग लगाता हूँ, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया। ओके, यहाँ पे एक स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग कहाँ पे लगाएंगे? एक काम करता हूँ, I'll put one more spring somewhere here. तो ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। There is one more spring here. Okay, clear? Following? Yes, sir. Yes, sir. Following. Clear. Yes, sir. इसका मास m है, okay? And pulleys are all massless and frictionless. Frictionless. पुलिस का भी मास दे सकते तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता प्रॉब्लम, बट आई डोंट वांट टू डू दैट इन दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे मासलेस पुलिस ले रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. ठीक है सर। तो बेसिकली मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुलिस। बहुत गौर से देखो ये प्रॉब्लम, Yes, sir. मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुलिस। ओके, नाउ Yes, sir. मैं एक काम करता हूँ, इसका ओके ये यहाँ पे फिक्स्ड होके रहता। ओके फाइन, ठीक है, बराबर है, बराबर। ओके, यहाँ पे एक और मास लेना पड़ता। Sir, question paper के कुछ doubts है, कब clarify करते हैं आप? मैं करता हूँ, 2 to 3. मैं करता हूँ। Okay, sir. ओके, I'm changing this question little bit. ये स्प्रिंग यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। Let us make this a fixed pulley. मैं बोला ना फिक्स्ड है बोल के, तो स्प्रिंग लगाए तो फिक्स नहीं रहती है, मूव होते रहते हैं। हाँ. तो अभी फिक्स्ड हो गई, ठीक है। Now Yes, sir. I'll fix this to the floor somewhere like this. Okay. हाँ, अभी ठीक है। Now I'll make the spring constant here as K1 and spring constant here as K2, ठीक है। K2. इसका K1 है और इसका K2 है। K2 है. इनफैक्ट अगर K और 2K लिया तो थोड़ा इजी होता, वैसा करो। क्या ऐसी करूं? ये करे तो एक्चुअली थोड़ा जनरल हो जाता प्रॉब्लम, वो स्पेशल हो जाता। एक जनरल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। ये K1 है, ये K2 है, ठीक Okay, है। sir. ओके फाइन। ये जो K1 है स्प्रिंग, वो X1 से एक्सटेंड होता सपोज। हाँ. K2 का जो है ना X2 से एक्सटेंड होता इधर, Extend होता है. Yes, sir. X2 से एक्सटेंड होता, ठीक है। तो M Yes, कितने sir. से नीचे आता? बोलो, M कितने से नीचे आता? सर अभी देख के x2 बोलो minus सर. x1 हाँ, X2 minus X1 से कहते हैं. नो, ये X1 से एक्सटेंड हुआ ये स्प्रिंग, ठीक है। और ये स्प्रिंग X2 से एक्सटेंड हुआ, तो ये M कितने से नीचे आता? x1 plus x2 नहीं, X1 प्लस, अगर ये पुली ऊपर आ गया, X1 plus 2X2. 2x2 वेरी गुड। X1 प्लस 2X2 कैसा आया? क्योंकि X2 का एक साइड, वो साइड भी है एक, मतलब राइट साइड भी अभी एक थ्रेड पे. ओके, नहीं मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? ये X1 प्लस 2X2 क्यों हो रहा?
क्योंकि ये जब x1 से एक्सटेंड होता तो कितनी स्ट्रिंग छोड़ता इधर, x1 छोड़ता, ठीक है, तो वो x1 आ गया Yes, इधर, sir. क्लियर। बट ये बस जब मेरा x2 से ऊपर जाता ना, ये पुली भी x2 से ऊपर जाती, ठीक है, ये पुली जब x2 से ऊपर जाती, इधर का x2 और इधर का अच्छा x2 दोनों साइड्स का दोनों था। रिलीज होते, राइट, तो 2x2 आता। बात समझ में आई, हम लोग करे यस थे। सर, Yes, sir, 2x2 got का it. स्ट्रिंग अच्छा। आगे जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक ब्लॉक रहा तो इसका एक्सेलरेशन अगर a ऊपर रहा तो इसका 2a बोल के फाइंड करे थे, वही लॉजिक से, Okay, समझ गया। क्लियर, Yes, sir. फाइन, समझ में आया Yes. एवरीबॉडी। यस सर समझ यस गया। सर। अच्छा ओके, वन मोर थिंग, Yes, sir, अगर समझ गए। इसमें टेंशन T है, अगर इसमें टेंशन T है तो नीचे वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितनी रहती? Can you repeat the question, sir? See, if tension in this string is T, what will be the tension in this string? 2T. 2T, 2T. Why? Because देखो ऊपर T लग रहा, T लग रहा, इधर T और इधर T लग रहा, तो नीचे बैलेंस करने के लिए 2T लगना, because this is massless ना, यस F सर। net is Yes, equal to sir. M है, massless है तो ये जीरो हो गया टर्म, तो इसका मतलब F net भी जीरो रहना, F net जीरो रहना मतलब ऊपर जितना फोर्स लग रहा नीचे भी उतना ही लगना, तो ये Yes, T sir. प्लस P ऊपर लग रहा Yes, तो sir. ये लॉस ऑफ मोशन में बहुत सारे करे थे, राइट। हाँ सर सर वो करे ऊपर थे। वाला Yes, पुली sir. का भी 2T है ऊपर। कहाँ पे, कहाँ पे? हाँ हाँ, ऊपर fixed वाले का, का ऊपर वाला fixed का पुली। सबसे ऊपर ऊपर वाला। ऊपर वाले का भी 2T, बट उसको it is नहीं लिए not तो भी useful. चलता मगर। It is not useful for us unless और otherwise क्वेश्चन में पूछा कि उसमें टेंशन कितना है, आप बोल सकते, बट हमारे लिए काम नहीं आता, ठीक है। ओके ओके सर। ओके फाइन, यहाँ पे लॉजिक लगाओ और बोलो व्हाट इज x1 इक्वल टू, बोलो जल्दी बोलो। बोल रहे सर एक t एक बाय बार रिपीट करिए। व्हाट इज x1 इक्वल टू t बाय k1 यस सर। यस सर। एंड लेट इट बी इक्वल टू x, लेट इट बी इक्वल टू x, ठीक है। यस सर। ओके फाइन, सेम लॉजिक से बोलो व्हाट इज x2। ऊपर अपन ऑलरेडी एक टर्म ले लिया ना सर x बोल के। नहीं नहीं नहीं, लेट अस मेक दिस एज x, तो x2 सर क्या 2t होता by है? k2, 2t by k2। यस सर। वेरी गुड, बराबर। कैसा आया 2T? क्योंकि टेंशन 2T है तो स्प्रिंग भी 2T से स्ट्रेच होता, राइट। यस सर। ओके एनीवे, कहाँ है ये, तो बोलो x2 इक्वल्स टू 2T by K2. 2T बाय K2 K2, तो इन टर्म्स ऑफ x क्या होता बोल सकते हैं? क्या बोले सर? इन टर्म्स ऑफ x क्या होता? ये 2T बाय K2, 2x होता क्या? नहीं। नहीं नहीं, x इंटू K1, देखो t की जगह क्या डालते हैं, x इंटू K1 डाल सकते हैं, यस सर। यस यहाँ पे सर। t इक्वल टू x इंटू K1 है, वो सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होता है, x 2x इंटू, k1 by k2। 2x K1 by K2। बात समझ में आ गई? समझ Yes, sir. गए। ओके फाइन। सर ये कुछ फॉर्मूला है क्या, x इक्वल टू t by k1 ऐसा? नहीं भाई, F इज इक्वल टू KX है ना स्प्रिंग का, यस सर, समझ गया सर। ये वाला T equal to KX समझ गया सर, उसको रीअरेंज कर दिया अपन। F इज इक्वल टू KX ना, यस सर। वही यूज करें। x इक्वल टू f by k। X इक्वल टू F बाई के, F टेंशन रहता, ठीक है, क्योंकि जितना टेंशन Yes, रहता sir. उतने से सर स्प्रिंग को समझ गया खींचता। सर। बात समझ में आया? यस Yes. ये सर। फार्मूला Yes, यूज sir. करें। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू। नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई रोट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x, व्हाई आई रोट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x आप लोगों को समझ में आता। ओ सॉरी 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 सॉरी, x नहीं, x प्राइम लिखेंगे यहाँ पे, क्या X लिखेंगे? prime वही बोल रहा था मैं, जब ऑलरेडी एक X ले लिए थे बोल के। ऑलरेडी x ले लिए, ये x प्राइम लेंगे, क्या लेंगे? x प्राइम। बात समझ Yes, में आई? sir. ओके फाइन, यस सर। तो x प्राइम के टर्म्स में आ गया x1 और x2। अब x लिखेंगे x प्राइम के टर्म्स में, Yes, sir, x समझ गया इक्वल मैं। टू, हाँ, x1 प्लस 2x2 विच इज इक्वल टू, बोलो, X prime plus x प्राइम प्लस 2x prime 2, K1 by नहीं, K2। 2k1 बाई k2 लिखो पहले, Okay, इंटू x प्राइम, ठीक है। okay, yes sir, समझ गया, वो कॉमन तो में x निकाल इक्वल टू क्या आता? X prime into 1 plus 2K1 by K2। ओके, 1 प्लस 2k1 बाई K2। k2 आ गया। अब x प्राइम कॉमन ले लिए क्या? Yes, sir। हाँ। हाँ। तो x प्राइम इज इक्वल टू क्या आता?
x prime equal to x by ये 1 x minus by क्या 1 था? plus 2k1 1 by plus k2. 2k 1 by k2. बात समझ में आ गई? yes Yes Yes, sir. sir. अब x प्राइम आ गया इन टर्म्स ऑफ x, तो सबको लिखो इन टर्म्स ऑफ x. और क्यों लिख रहे हैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आता. व्हाई वी आर राइटिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x, नेक्स्ट स्टेप में to समझ. find x No. To get one equation right, we are writing, but okay, anyway, बोलो. क्या करना है सर अब? x1 क्या होता? ये पूरे को x के टर्म्स में लिखने का है अपने को. x1 is equal to x prime ना, yes sir, हाँ sir. is x1 equal to equal to x by 1 plus 2k1 by 1 plus k2 2k1 k2 by k2. k2. Okay, x1 आ गया. yes sir. x1 आ गया, x तो ऑलरेडी आ गया. अब x2 बोलो. ये पूरा 2k मतलब सर एक 2k बार into एक बार वो दिखाइए ऊपर का, वो देखिए इसी तरह बोल. yes sir. एक मिनट. x2 equals to, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, x2 is equal to 2x prime 2 into x prime k1 by k2. 2 into x तो prime x prime k1 की by वैल्यू तो उधर डाल दो होल बस. into 2 कर लेके by k1 by. तो क्या आता? x prime 2 की वैल्यू into डाल दी तो अपने x को 2 into x by 1 by plus Into 2k1 k1 by by k2 k2. 2k1 by k2. into k1 by k2. ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2k1 हाँ, by कर ले k2 मतलब. लिख के करेंगे अच्छा, सिंपलीफाई. k1 by k2 नीचे गया तो क्या होता? k1 by k2 नीचे गया तो k2 by k1 हो जाता ना. k2 by k1 बन जाता हाँ, है. Yes. तो k2 by k1 plus 2 लिख सकते हैं. हाँ ये सर समझ गया, मैं k2 लिख by सकते k2 by k1 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करे तो 1 से k2 by हाँ, k1 आया. वो सेकंड टर्म कैंसिल हो जाता, खाली 2 बचता. ओके, यस सर. क्लियर. सर एक बार Yes, ऊपर का sir, दिखाइए, clear. ऊपर का देख लेते हैं क्या आता. एक मिनट. कौन से ऊपर का? जो x2 जो है. x2 in terms of x prime. हाँ यहाँ पे और समझ गया. क्लियर. यस ओके सर. सर. ना हम लोगों को ये सब आ गया. x1 आ गया, x2 आ गया. अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करें तो x की वैल्यू भी आ जाती है. नहीं, x की वैल्यू नहीं चाहिए हम लोगों को जो है ना टाइम पीरियड चाहिए ये सिस्टम का. इसको जब डिस्टर्ब Okay. करते हैं ये SHM में आता. ठीक है, तो कैसे SHM Yes, में sir. आता? मतलब जो SHM में आता उसका टाइम पीरियड क्या है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड. ठीक है, तो टोटल Yes, sir. एनर्जी. ये x को अपन x2 minus x1 लिखते हैं ना. ओके, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर mv square प्लस हाफ kx square. Yes, sir. Plus half x1 k स्क्वायर square. प्लस हाफ राइट kx2 square. आप समझ में आ गया. अब x की k2 वैल्यू x2 x1 x2 की स्क्वायर जगह बराबर. डाल सकते हैं अपन. नाउ Yes, sir. ये v जो है ना dx1 by dt नहीं है ये. ना ही dx2 by dt dt भी होता है इसलिए है. मगर क्या है वो dx by dt है. That is the reason we have to write these in terms of x. Only then we can Yes, sir. get the answer. Clear? बाद में पूरा मतलब स्विच कर ले. इक्वेशन में ये जो v है ना वो समझ गए, x का डेरिवेटिव रहा तो ही आप वो कंक्लूड कर सकते. ठीक है, Okay, समझ गया सर. तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर ऐसे लिख दो प्लस हाफ x1 whole square की वैल्यू. बोलो भाई x1 का क्या आता? x by 1 plus x by 1 1 plus by 2k1 by k2. ओके 1 plus 2k1 by k2 k2 होल स्क्वायर हाँ into Yes, x2 sir. square है इसलिए. प्लस पूरा वो x के टर्म्स में लिख लेना सर. हाफ k2 into 1 by k2 by k1 plus plus 2 into 2. Sorry, Whole plus 2 square. whole square whole square into x square. into x square. ओके, होल स्क्वायर into x स्क्वायर. ठीक है, Yes, sir. समझ गए. अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ Plus half एक मिनट देख के बोलो. यहाँ पे जगह नहीं होती इसलिए यहाँ पे k2 whole square by k2 plus 2k1 whole square. k2 होल स्क्वायर
by k2 plus 2k1 whole square. into k1 भी आता ना, सर ऊपर k2 ऊपर चलेगा तो अपना k1 into k2 स्क्वायर आता ना, हाँ k1 into k2 स्क्वायर राइट नीचे एलसीएम देके ऊपर 1 चले जाता हूँ मैं plus k2 plus 2k1 4k1 स्क्वायर आई थिंक नो नीचे एलसीएम आता ना, हाँ सर तो k2 plus 2k1 लेकिन सर होल By स्क्वायर भी तो है ना K2 ऊपर whole square. Yes sir, Whole बराबर, square. इसको भी whole square. इसका स्क्वायर आता बाई राइट, k2 होल स्क्वायर By Yes K2 sir. नहीं K2 आता, ऊपर K2 चलेगा। ऊपर चला गया. k2 ऊपर चले गया, ऑलरेडी लिख लिए, हाँ होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर क्लियर, Yes यस sir, सर into क्लियर x square. into x स्क्वायर आता, ठीक है, Yes sir. वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इधर क्या आता, Half k2 k2 k1 square by k2 plus 2k1 whole square. Into x square, फिर वो common में पूरा. ये यही आता ना सेम, हाँ Whole sir, square. same. k2 plus हाँ सर 2k1 होल यही आता, आ गया, Yes sir. ये दोनों को कॉमन ले लिए तो into x स्क्वायर आ जाता, ठीक है, x स्क्वायर Yes बाहर sir. आता अब डेरिवेटिव के लिए तो t is equal to 0 आ रहा था अपने को अंदर के डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर दे सकते हैं अपन बाद में. हाँ क्लियर, तो बेसिकली कुछ नहीं, एवरीथिंग सेम आया, इन प्लेस ऑफ क्या भाई, इन प्लेस ऑफ के कुछ कॉम्प्लिकेटेड आया टर्म बस, हाँ. ठीक है, Yes sir, समझ गए. तो बेसिकली इसका आंसर क्या रहता बोलो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू और ओमेगा इज इक्वल टू k बाई m, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू m बाई k ना, 2 पाई बाय ओमेगा आता Yes sir. तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, समझ में आया, Yes sir. देखो भाई बहुत सारे स्टेप्स है अभी, मगर आदत हो जाना आप लोगों को कि बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ना, आप ये देख के लिख देना आंसर कि टाइम पीरियड जो है ना 2 पाई इंटू अंडर रूट, अब वो अंडर रूट में जो है ना बहुत बड़ा टर्म आता, ऊपर m आता, ऊपर क्या k आता, की जगह ये पूरी m आता, k के बदले जो है ना ये पूरा जो k की जगह ले रहा आप, ठीक है, Okay. Yes sir. ओके, Yes और sir. इनफैक्ट डायमेंशनली वो k ही रहता, देखो डायमेंशनली वो k ही रहता, क्यों रहता डायमेंशनली k, क्योंकि मतलब देखो kg ऊपर square k by क्यूब है, kg कैंसिल हो जाता. kg नहीं बचता. ऊपर k क्यूब है ना, ऊपर k क्यूब मतलब k का Yes sir. क्यूब है डायमेंशन, नीचे जो है ना k स्क्वायर है Square है. डायमेंशन, तो तो स्क्वायर और kg बच जाता. k बन जाता बराबर, Yes sir. तो आप ऐसा लिख सकते हैं टाइम पीरियड ये है बोल के, ठीक है, अब क्योंकि ये k क्या क्या हुआ भाई, हाँ क्योंकि ये k में दिया ना पूरा k1 Yes sir. k2 में, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड आया, अगर उन k1 k2 के बदले k और 2k देता ना तो बहुत इजी हो जाता था प्रॉब्लम, हाँ क्योंकि देखो 2 कॉमन में निकल जाता था. कॉमन भी निकलता और बहुत सारे चीजें आसान हो जाती, मैं बताता हूँ हाँ. क्यों आसान होते बोले तो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल होता था चीजें. नहीं कैंसिल होने का नहीं, और रेशियो एंड सीधा प्रोपोर्शन सीधा से अपन easy हो- एलसीएम भी सीधा ठीक हुआ था फिर पूरा सीधा सीधा ऐड कर ले फिर अपन मल्टीप्लाई कर लेके खुद हम्म, सिंपलीफाइड होता तो सिंप्लीफाई हो जाता वो, ठीक है, तो ये आपका आंसर है Yes sir. बेसिकली, ओके, मैं एक छोटा बताता हूँ आप लोगों को आइडिया आ जाता, उसके बाद नेक्स्ट सर क्लास अभी अपन इसको डिफरेंशिएट नहीं करते थे क्या, उसको ऊपर वाले इक्वेशन को? करने के बाद, पूरा करने के बाद यही आता, अरे क्या हाँ, आता, नहीं वो चले जाता वो पूरा. समझ गया. सर अपन हम्म। डिफरेंशिएट नहीं भी करे तो भी ये उसके फॉर्म में है ना हाफ के एक्स स्क्वायर तो के की जगह पर डाल सकते हैं सीधा सीधा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में है, हाँ तो के बोलते हैं अपन के की जगह एम बाई के की जगह हाफ डालिए के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो के जगह ये ले लिया, एम की जगह एम ले लिया, खलास, यस सर. बात समझ में आई, यस सर, ओके क्लियर, अब ये सेम प्रॉब्लम अगर थोड़ा सिंपल तरीके से दे दिया तो इजी हो जाता, क्यों इजी हो जाता मैं बताता हूँ, ये कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे k1 k2 देने की वजह से इतना पूरा कॉम्प्लिकेटेड आया आपको, ठीक है, अब मैं बताता हूँ एग्जाम में अगर k दे दिया आपको, मतलब k के वैल्यूज दे दिया, और फॉर एग्जांपल देखो ये मेड दिया, ये क्लियर क्लियर क्लियर, k1 क्लियर,
ओके ये 2t रहने दो बिकॉज इट विल नॉट चेंज। अगर यहाँ पे देखो सी, अगर ये k देता, अगर ये 2k देता स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, Okay. ये 2k देता, नहीं दूसरा, तो यहाँ पे ये अपना ये 2k देता और ये k देता, ठीक है, Yes sir. वहाँ पे फिर न्यूमरेटर में 4k स्क्वायर हो जाता। हाँ 2k देता, नहीं 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 नहीं, डोंट लुक एट दैट इक्वेशन, फॉरगेट दैट, Okay. ये k है ये 2k है, ठीक है। अब तो मैं इसके बोलता बीच में से अपने को रिलेशन आ जाती है। नहीं 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 नहीं, मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं एक चीज बोलता हूँ, ये जो 2k वाला है ना, अगर x से एक्सपैंड हुआ और एलोंगेट हुआ तो ये Yes, sir. वाला 4x से होता। डू यू एग्री? Yes, agreed. sir. Yes sir. व्हाई? बिकॉज देखो वहां पे टेंशन t है और स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, यहाँ पे टेंशन डबल है, स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ है, जिसकी वजह से एलोंगेशन 4 टाइम्स हो जाता है, सर राइट? फिर से बोलिए। सी f इज इक्वल टू kx ना, तो x इज Yes, इक्वल sir. टू x इक्वल टू Okay. F by K. Two. f by k, f by k। ये स्प्रिंग में टेंशन t है और ये Yes, sir. 2k है, समझ गए, t by 2k। यहाँ पे Okay, मैं अब टेंशन समझ 2t गया। है और ये k है, इसका मतलब टेंशन डबल हो रहा, k हाफ हो जा रहा, इसका मतलब ये एलोंगेशन 4x हो जाता। बात समझ में आई? Yes sir. Yes सर sir. बात समझ में आ ओके ये 4x है, लॉजिक से, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े इक्वेशंस नहीं लिखना, वहां का वहां डायग्राम में कर लेना प्रॉब्लम। ये ब्लॉक कितने से आता, नीचे बोलो। 9x से आता क्या सर? एक्सेलेंट, बराबर, जबरदस्त बोले, 9x से आता। कैसा आया 9x? क्योंकि देखो ये जो x छोड़ा वो तो नीचे उतरता, सीधा वही स्ट्रिंग है, ठीक है, मगर ये जब 4x से ऊपर जाता ना तो इधर का 4x सर और डबल इधर आता का उसका 4x 8x आता फिर वो 8x हो जाता, 8x 8x plus एक्स्ट्रा x. छोड़ दो, 8x plus x 9x। Right, 9x. बात समझ में आ गई? आगे सर Yes sir. Yes sir. अब एब्सोल्युटली सिंपल है, टोटल एनर्जी अगर लिखे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, Yes sir. क्लियर? Sir. हाफ mv स्क्वायर। अच्छा वन मोर कंफ्यूजन है यहाँ पे, एक मिस्टेक होता, मैं एक काम करता हूँ भाई, देखो ये x डैश ले लेता हूँ, ये 4x डैश ले लेता हूँ, x डैश 4x डैश 9x डैश, समझ में आया? Yes sir. Yes sir. 4x डैश ये 9x डैश, ठीक है, ये 9x डैश इक्वल टू x लेंगे, ठीक है। Yes sir. अगर 9x डैश इक्वल टू x है तो 4x डैश क्या हो जाता? Equal to 4/9. 4x by 9। Yes sir. और ये How क्या हो sir? जाता? x by 9। बात समझ हाउ में आई? सर तो अब हाफ m, क्योंकि देखो जो v है ना, v किसका है, वेलोसिटी मास का रहता हमेशा, ठीक है, Yes sir. जिसका वेलोसिटी ले रहे ना वो एग्जैक्टली x रहना, समझ गए, Yes sir. उसका डेरिवेटिव इन आता। तो सारे जो है ना x के टर्म्स में लिखना, और ये x जो है ना x ही रहना, इसके साथ कोई फैक्टर नहीं रहना, समझ गए? Yes sir. अदरवाइज क्या, अगर 9x डैश दिया ना, v के बदले 9v लेना पड़ता मेरे को उसका डेरिवेटिव, इसलिए समझ गए, Yes sir. समझ गया। प्लस हाफ k1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ k2 x2 स्क्वायर। बात समझ में आई? Yes, sir. सो Yes टोटल sir. एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ k1 तो k है और ये x by 9 है, बराबर, Yes sir. Yes sir. होल स्क्वायर प्लस हाफ k2 2k है Yes और sir. ये 4x by 9 है, क्लियर? Yes sir. तो अभी इजी हो गया प्रॉब्लम, Yes sir. पूरा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये हाफ mv स्क्वायर ऐसे ही रहता, प्लस हाफ k अगर कॉमन ले लिए तो 1/9 प्लस 32/9, Yes sir. इनटू क्या आता बोलो, x स्क्वायर, समझ में आया? Yes sir. Into x square आता। तो कैलकुलेट करो क्या आता। सर वो 81 नहीं रहता? 33/18 के x Denominator square। should be ओ सॉरी 81. सॉरी 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 81 रहता, राइट।
तो बोलो क्या था? $81, 81 Yes, sir. 33 by 81. कितना? 33 ना? तो 3 से कैंसिल करो, 11 by 27. 11 by 27 right? 27 Yes, sir. 11 by 27. 11 by 54 समझ लो। कैसा? वो नहीं, 2 से नहीं, मल्टीप्लाई half- होके sir, फिर नहीं अच्छा नहीं 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 वो कॉमन में निकाल ले रहे उसको। नहीं वो डिस्टर्ब मत करो, हाफ रहने दो, क्योंकि अपने को 11 by भाई को स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको अपन kx के फॉर्म में लेके आ रहे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं, वो हाफ डिस्टर्ब Yeah. नहीं करना, ठीक है? तो 11 हैं। बाय हाँ सर, तो आगे अपन सीधा 11 by substitute करना 27 k k x square. ठीक है, तो बेसिकली m की जगह m आया, वो तो चेंज नहीं हुआ, ये k की पर्टिकुलर जगह 11 by 27 k आया. इसकी जगह 11 by 27 आया, बराबर? Yes तो sir. टाइम Yes, पीरियड sir. क्या Sir. होगा? सी अब 2 बहुत pi by सारा omega. 2 there are pi by so many steps from here, but we won't do, we'll do only for 2 times. बाद में आदत हो गई अपने को, ठीक है? देखो प्रॉब्लम जब पहली बार करते पूरा करते, बाद में अगर कोई स्टेप पे एब्स्ट्रैक्शन आ गया, एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या? मतलब उसको देख के 5-6 स्टेप जंप करके आंसर बोल सक रहे, तो 5-6 स्टेप जंप करके आंसर बोल देना, समझ गए? ओके सर समझ गया। Yes, टाइम इज sir. इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m by k. तो आई Yes, थिंक sir. 57 m by 11 k. m by 11 के खत्म। मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स ये पूरा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? फिर वो कंपेयर कर लेना, समझ गए? वो वेस्ट Yes, ऑफ sir. टाइम है अभी, ठीक है? Yes. ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे सिस्टम्स रहते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, हम लोग देखेंगे, ठीक है? ठीक है रोटेशन भी Okay, इन्वॉल्व sir. रहता, ठीक है? Yes, sir. तो Okay, sir. ये बोलते हैं फाइंडिंग टाइम पीरियड यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्लास में एक और चीज देखेंगे, अगर स्प्रिंग मास को वर्टिकली हैंग करे तो क्या होता? अब तक हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा था ना? हाँ. वर्टिकली हैंग करे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व होती, ठीक है? उससे कुछ फर्क आता टाइम पीरियड में या नहीं आता? नहीं आता तो क्यों नहीं आता, ठीक है? टाइम पीरियड वर्टिकली हैंग करे भी तो 2 पाई अंडर रूट m by क्या अगर बोल के क्लेम करा मैं, तो उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, वो सब Yes, देखेंगे, sir. ठीक है? सर ऐसे टफ प्रॉब्लम्स ये है ना पूरे एचसी वर्मा में, ऐसे काइंड के टाइप के प्रॉब्लम। वर्मा में तो नहीं है बट ये मल्टीपल स्प्रिंग्स के नहीं है, मल्टीपल स्प्रिंग्स के ओके होना मतलब इतने टफ नहीं है। नहीं, मल्टीपल स्प्रिंग्स के नहीं, वैसा टफ बोल के नहीं, ये पर्टिकुलर टाइप पे फोकस नहीं करा है अचीवर में। एक एक Okay. ऑथर जो है ना, एक एक चीज छोड़ देता कभी, फॉर एग्जांपल ये छोड़ दिया अचीवर में। अगर आपको ये टाइप के प्रॉब्लम चाहिए तो या तो रेजोनेंस का मटेरियल देखो, या नहीं तो डीसी पांडे में रहते। आप भेजते सर थोड़े प्रॉब्लम्स मतलब कुछ प्रैक्टिस करने मैं एक काम करता हूँ, डीसी पांडे शेयर कर देता हूँ, ठीक है? को। ओके सर। तो डीसी पांडे में अनसॉल्व क्वेश्चंस करो। कहाँ है मॉड्यूल 1? इसमें एसएचएम दिख रहा? नहीं दिख रहा। इसमें एसएचएम दिख रहा? यस सर। तो ये भी शेयर करता हूँ, देखो अच्छी बुक है ये, मगर थोड़ा ज्यादा मतलब कंटेंट ज्यादा रहता, टाइम बहुत ज्यादा लगता, ओके बट एनीवे ओके, विल कंटिन्यू टुमारो। ओके सर। सर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, बाय।